हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? आई होप सब बढ़िया होंगे और अच्छा सा मौसम भी एंजॉय कर रहे होंगे, राइट? सो स्टूडेंट्स, यू विल बी हैप्पी टू नो कि हमने ऑलमोस्ट हमारा टर्म वन एग्जामिनेशन का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है एंड नाउ वी आर ऑन द लास्ट चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स रिलेटेड विद आवर टर्म वन एग्जामिनेशन एंड दिस इज आल्सो द लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक। बट स्टिल हमें टर्म टू वाला सिलेबस जो बीच में स्टेप किया है वो करना है, right? So have a look, chapter number 12, that is balance of payment. It is basically related with the payments and receipts of foreign currencies. In our previous chapter we have discussed about the foreign exchange rate, right? We have discussed the meaning of foreign currency and we have also discussed about the foreign exchange rates. In this chapter we will go with the balance of payment, which is completely new for all of you. So have a look, what are the learning objectives of this chapter. In this chapter, we will firstly discuss the meaning of balance of payment. Then we will discuss its important part, that is balance of trade. Then the components of BOP, the autonomous and accommodating items, and then this equilibrium in the BOP. As a part of your syllabus, the autonomous items and this equilibrium in BOP is deducted, but we will still do it as it is a minor topic. बहुत छोटा सा है, हम अगर कर लेंगे तो हमारी knowledge increase होगी. Now have a look. What is BOP? बहुत सिंपल है. ये एक ऐसा अकाउंट है, एक ऐसी अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जिसमें हमने एक फाइनेंशियल ईयर में हमारी कंट्री के रेजिडेंट्स और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए उन सभी को लिख दिया है. What is it? It is an accounting statement that provides a systematic records of all economic transactions. Economic transaction means the financial transaction between the residents of a country and rest of the world during a given period of time, which is basically 1 year. So you must make it clear in your mind that BOP is an account which records the inflow of foreign currency and the outflow of foreign currency. All the receipts of foreign currency and the payments of foreign currency are recorded in this account. Now have a look. BOP is a summary statement in which all economic transactions between residents and rest of the world are recorded during a particular period, usually 1 year. What is BOP? BOP एक समराइज स्टेटमेंट है. वापस वही बात है, क्या लिखा है आपने? सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस लिखे. इकोनॉमिक मींस ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की बात हो रही है, राइट? नाउ हैव अ लुक. Who all are included in residents? This concept is related with that of national income. Residents में कौन कौन आएगा? कंट्री में रहने वाले इंडिविजुअल्स, फर्म्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है? डिप्लोमेटिक स्टाफ, फॉरेन मिलिट्री पर्सन्स, टूरिस्ट, माइग्रेटरी वर्कर्स एंड ब्रांचेस ऑफ फॉरेन कंपनी. Even those who are working in our country, which are operating in our country, will not be included. We will include only those who are individuals, firms, and government agencies of our nation, right? Now have a look. Economic transaction. The basic economic transactions of balance of payment includes 4 items. Number 1, visible items. Quite simple. हमारी कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जितना भी फिजिकल गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है ना, that will constitute a part of visible items. Only physical goods, only physical goods की बात कर रहे हैं. जो goods visible हैं हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, ठीक है? Next, invisible. All the export and import of services between one nation and another. हमारी कंट्री का दूसरी कंट्री के बीच साथ जितना भी सर्विस रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो इसके अंदर आएगा. Then one-sided transfers or you can say unilateral transfers. हमने गिफ्ट्स रिसीव किए या गिफ्ट्स दिए, कोई भी रेमिटेंसेस या और कोई भी वन वे ट्रांजेक्शंस जो भी हैं वो भी इधर ही आएंगे. यू मस्ट नो देयर आर 3 नेम्स फॉर अ सिंगल टर्म. Number 1 name is unilateral transfer, number 2 one-way transfers, one-way transactions, and number 3 unrequited transfers. Unrequited क्यों कहा बेटा? क्योंकि इसके अगेंस्ट में हमें कुछ नहीं करना है, right? Number 4, transaction number 4 of BOP is capital transfer. All those transfers which results in either increase or decrease in the state of asset and liability of our nation. Asset या liability दोनों में से कोई भी एक चीज अगर impact होती है either positive or negative, then such transaction will be recorded in capital account of BOP and that will be called as capital transfer. Now have a look. ये सारा वापस पढ़ना है आगे इसी चैप्टर में, तो अभी मैंने आपको शॉर्ट में बताया है. Structure of BOP. Every accounting statement will have 2 sides. BOP is also an account, so it will also have 2 sides, debit side and credit side. डबल एंट्री सिस्टम पे ये चलता है. क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों होते हैं.
हैव अ लुक क्रेडिट साइड में क्या आता है. जितने भी इनफ्लोज ऑफ फॉरेन करेंसी है हमारी कंट्री में, जब जब फॉरेन करेंसी आ रही है किसी भी सोर्स से आओ, डजेंट मैटर, फॉरेन करेंसी का अगर आपको रिसिप्ट हुआ है, यू विल बी रिकॉर्डिंग सच रिसिप्ट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ बीओपी. And if you are paying the foreign currency for any purpose, then such payment will be recorded on debit side of BOP. It means all the inflows of foreign currency comes on credit side, while on the outflows comes on debit side. Now have a look. In accounting sense, this statement is very important. Statement तो एक ही लाइन की है, but है बहुत खास. In accounting sense, BOP is always balanced like trial balance. Trial balance is an accounting statement which is always balanced, which is having both sides as equal. Debit side and credit side both will have equal record, right? However, in economic sense, BOP need not be equal. It means BOP can be balanced, surplus, deficit. बहुत आसान है बेटा. देखिए अकाउंटिंग सेंस में तो पेमेंट और रिसिप्ट हमेशा बराबर ही होने, अंडरस्टूड सी बात है. लेकिन अगर मैं इकोनॉमिक सेंस की बात करूँ ना, तो बीओपी सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है, बैलेंस भी हो सकता है. सरप्लस कब होगा? इन केस माय रिसिप्ट ऑफ फॉरेन करेंसी आर मोर देन द पेमेंट्स मेड इन फॉरेन करेंसी. तो मेरा बीओपी कैसा आएगा? इट विल बी सरप्लस, राइट. रिसीव ज्यादा किया है फॉरेन करेंसी को और पे कम कर दूं तो मेरा बीओपी सरप्लस रहेगा. In case my receipts are less than my payments, मैं पे ज्यादा कर रही हूँ और रिसीव कम कर रही हूँ, my BOP will be deficit. And if my receipt of foreign currency are exactly equal to my payments of foreign currency, then my BOP will be balanced BOP. तो अकाउंटिंग सेंस में तो हमेशा रिसिप्ट और पेमेंट बराबर ही रहेंगे, लेकिन इकोनॉमिक सेंस में many times we are receiving more than what we are paying. And many times we are paying less, we are paying more than what we are receiving, right? तो वो balanced और unbalanced हो सकता है. Unbalanced की दो types है, surplus and deficit. Surplus is better for us while deficit is harmful. Now have a look. This quick recap of BOP is for you. Now BOT is a part of balance of payment. Balance of payment का एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा, एकदम छोटा सा. क्या है? अभी आपने पढ़ा ना that there are 4 types of economic transactions. Which transactions? Visible, invisible, unilateral and capital. तो जो visible transfers है, जो visible items है, सिर्फ उसकी बात करें तो उसका another name है balance of trade. Visible means exports and imports of goods, right? तो देखिए BOT क्या है? It refers to the difference between the amounts of exports and amount of imports of visible items, that is goods. Flow में goods and services मत लिख दीजिएगा, क्योंकि काफी बार हम flow में जब बह जाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है, राइट? हम तो हमेशा से goods and services साथ में लिखते हैं, भाई बहन है दोनों, तो हम दोनों को साथ में लगा देते हैं. नो बेटा, ओनली गुड्स. गुड्स का फिजिकल गुड जो आप देख सकते हो, अगर वो गुड आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हो तो वो आएगा बीओटी में, या आप इंपोर्ट करते हो तो वो आएगा. इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है? तो बीओटी को बैलेंस ऑन विजिबल ट्रेड या ट्रेड बैलेंस भी कहा जाता है. यू कैन सी द फॉर्मूला, export of goods minus import of goods. Now again it can be surplus, balanced as well as deficit, right? एक बात लिखी हुई है, एक्सपोर्ट्स को क्रेडिट साइड में लिखेंगे. मैंने आपको बताया था ना बेटा, एवरी इनफ्लो विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड. तो अगर मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ, आई विल रिसीव फॉरेन करेंसी एंड रिसिप्ट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड. And if I am paying for imports, then my payment will be recorded on the debit side. आगे देखिए जरा ध्यान से, ये सरप्लस, डेफिसिट, बैलेंस बता नहीं रखा क्योंकि रियलिटी में होता नहीं है, बट यू कैन आल्सो मेंशन बैलेंस. Surplus, exports are more than imports. Deficit, exports are less than imports. Right? Deficit will be unfavorable for you. Every country want to attain a BOP surplus. Now, difference between BOT and BOT. You must have understood till yet only that BOP is a wider concept which includes BOT. Right? Balance of payment includes balance of trade, because balance of payment has 4 transactions: visible, invisible, unilateral, and the last one was capital. Whereas BOT include only the transactions related with visible goods. So have a look.
BOT is a narrow concept which includes only the transactions of goods, while BOP is a wider concept. Distinction में आप देखेंगे first point, I hope it is already clear to all of you. It is related with the meaning. Component, BOT includes only visible items, while BOP includes visible, invisible, unilateral as well as capital. Now a different point is given named as capital transaction. हमने ऊपर cover कर लिया है. BOP do not include any transaction of capital nature. ये रिकॉर्ड ही नहीं करता है भाई, इसको मतलब ही नहीं है, इसको सब visible goods से लेना देना है. Whereas balance of payment will record the transactions of capital nature also. So BOT, as it is a part of BOP, it is narrow in scope, whereas balance of payment is a wider concept. Settlement, this is again important. Unfavorable balance on trade can be met out with a favorable BOP. अगर बाय चांस मेरा एक्सपोर्ट कम हुआ है और इंपोर्ट ज्यादा हुआ है, यानी मेरा बैलेंस ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल है, डेफिसिट है, मैं इसको कवर अप करने के लिए बेटा बीओपी का कोई एक ट्रांजेक्शन कर सकती हूँ. आई कैन बोरो मनी फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट, आई कैन मैनेज एनी हाउ. बट अगर मेरा बीओपी अनफेवरेबल आ गया है लास्ट में, अब इसको सही करने के लिए आई कांट जस्ट एंगेज इन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड गुड्स. मैं नहीं कर पाऊंगी. मैं सोचूं कि मेरा बीओपी जो है वो डेफिसिट आ गया है, चलो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है. एक्सपोर्ट मेरे हाथ में नहीं है, एक्सपोर्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है, राइट. जब ये मेरे कंट्रोल में नहीं है तो ऐसे में मेरा जो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बीओटी के फेवरेबल से भी आप कवर अप नहीं कर सकते. नाउ अब बस रिवीजन है चैप्टर में, एक नया कंसेप्ट आएगा, बाकी सब चीजें वही है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. हैव अ लुक. कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी. बैलेंस ऑफ पेमेंट के भीतर दो अकाउंट्स बनते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. जो आपने अभी 4 पॉइंट पढ़े थे ना, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल एंड कैपिटल ट्रांसफर, उसमें सिर्फ कैपिटल वाले को छोड़ दीजिए, बची हुई सारी चीजें करंट अकाउंट में आएंगी. वो सारे ट्रांजेक्शन जो रूटीन नेचर के, जो हमारे असेट और लायबिलिटी को इन्फ्लुएंस नहीं करते, उनको तो हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में. एंड ऑल दोस ट्रांजैक्शन व्हिच अफेक्ट द स्टेट ऑफ असेट एंड लायबिलिटी ऑफ द सिटीजन या फिर गवर्नमेंट, उसको हम लिखेंगे कैपिटल में. ये करंट में, वो कैपिटल में. हैव अ लुक. करंट अकाउंट रेफर्स टू एन अकाउंट व्हिच रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड विद क्या क्या, तीन चीजें, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आ रहे हैं, बीओटी में सिर्फ गुड्स आया था. एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. यानी यू हैव रेड अबाउट 4 इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस. उन 4 में से जो बचे हुए 3 है, 4th नंबर को छोड़ दीजिए, 1, 2 and 3 आर अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट. Current account contains receipts and payments related to all transactions of visible, invisible and unilateral transfer. अब देखिए करंट अकाउंट का पहला कंपोनेंट विजिबल ट्रेड, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, राइट. ट्रेड डेफिसिट भी हो सकता है, सरप्लस भी होता है, ये तो हमने बीओटी में पढ़ लिया है भाई. फिर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इनविजिबल ट्रेड है ना, सर्विसेज का भी तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं. सर्विस के एक्सपोर्ट्स को लिखेंगे हम क्रेडिट साइड पे, बिकॉज दैट विल गिव अस फॉरेन करेंसी, एंड डेबिट साइड विल रिकॉर्ड द इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज बिकॉज वी आर पेइंग फॉरेन करेंसी फॉर दैट. नाउ हैव अ लुक. Number 3, unilateral or unrequited transfer to and from abroad. If we are paying to abroad, we will record it on debit side, and if we are receiving from abroad, these will be recorded on the credit side. Next one, income receipts and payments to and from abroad. अब आपको लगेगा मैम अभी तो आपने बताया कि 4 ही आइटम्स है, 4 में से 3 करंट अकाउंट में और बचा हुआ एक कैपिटल में. Then why this 4th point? Because सर्विसेज में एक छोटी सी चीज और होती है, फैक्टर सर्विसेज, उसको इन्होंने अलग से बता दिया. इफ यू हैव मेड एनी इन्वेस्टमेंट एंड यू आर रिसीविंग एनी इनकम एज अ फैक्टर इनकम, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट, दैट विल आल्सो बी रिकॉर्डेड ऑन द करंट अकाउंट. क्यों? क्योंकि ये मेरी सर्विसेज के बदले में इनकम है. अगर मैंने लैंड परचेज करके रखी है अमेरिका में और वहां किसी को रेंट पे दे दी, तो आई एम गिविंग हिम माय एसेट, राइट. he will be paying me rent, that rent will be received in the current account of BOP. आगे देखिए, करंट अकाउंट शोज द नेट इनकम. ये एक्चुअल ट्रांजैक्शंस जो भी हुए हैं वो बताएगा, तो ये बताता है हमारी नेट इनकम कितनी हमने जनरेट की है फॉरेन सेक्टर से. Now the difference between BOT and current account, you already know BOT is a narrow concept which is related with only visible goods,
while current account is a concept which is related with visible goods, invisible items, as well as the unilateral transaction. Now, current account can also be surplus or deficit. If the payments are equal to receipts, then it will be balanced. If the payments are more than receipts, it will be deficit. If the payments are less than receipts, it will be surplus. Surplus is favorable for us, while the deficit is harmful. Now have a look. ये टेबल आ गई तो सब आ गया. करंट अकाउंट में क्या क्या लिखते हो? सबसे पहले विजिबल आइटम्स लिखते हैं. तो एक्सपोर्ट किया गुड्स का तो फॉरेन करेंसी आई, तो हम उसको कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे. इंपोर्ट किया तो फॉरेन करेंसी गई, फॉरेन करेंसी जा रही है तो डेबिट साइड. आपको तो ये देखना है फॉरेन करेंसी आ रही है या जा रही है, राइट. नंबर 2, सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया तो फॉरेन करेंसी आई, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, और जब जा रही है तो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड. Unilateral receipts, credit side, unilateral payments, debit side, income receipts, credit side, and income payments on debit side. Receipts minus payments जब हम करेंगे तो हमारे पास net आ जाएगा कि हमने कितना earn किया है. Next, capital account, a bit different. It records all the transactions between residents of a country and rest of the world which cause a change in assets or liability of residents of a country and its government. Any transaction which is affecting my state of asset and liability will be recorded in capital account. For example, I am borrowing money from rest of the world. Definitely it will affect the state of asset and liability. It will be recorded on the current capital account. Now, if I am investing money in foreign country, definitely I am affecting my asset. It will again be recorded on the capital account. तो आपको तो याद रखना है asset और liability को influence करने वाली चीजें capital account में आती है, और asset और liability को जो चीजें influence नहीं करती है वो सारी current account में आती है. अब capital account में हमें 3 ही चीजें लिखनी है. अच्छा, ये क्यों किए जाते हैं ट्रांजेक्शन, ये भी देखिए. Finance the deficit in current account, absorb the surplus of current account. करंट अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आ गई है, डेफिसिट रह गया, तो उस डेफिसिट को कवर करने के लिए आइदर आई विल बोरो मनी और आई विल अरेंज इट एनी हाउ. और अगर सरप्लस है करंट अकाउंट में तो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो मैं इन्वेस्ट कर दूंगी, है ना. तो ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ या बोरोइंग हुई ये आएंगे आपके कैपिटल अकाउंट. फर्स्ट पॉइंट इज वेरी सिंपल, बोरोइंग एंड लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड. If I am borrowing something from rest of the world, I will be recording it on the credit side of balance of payment. आप ये मत देखना कि लाइबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, आपको तो केवल ये देखना है बेटा दैट द फॉरेन करेंसी इज रिसीव्ड और पेड. बोरो कर रही हूँ ना तो फॉरेन करेंसी रिसीव होगी, और जब भी फॉरेन करेंसी रिसीव होगी यू विल बी रिकॉर्डिंग इट ऑन द क्रेडिट साइड. और अगर लोन दे रही हूँ उनको, लेंडिंग कर रही हूँ, फॉरेनर्स को लोन दे दिया तो ये आ जाएगा आपके डेबिट साइड पे क्योंकि फॉरेन करेंसी जा रही है, राइट. नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड. फॉरेनर्स हमारे नेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे, हम उनके नेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम इसको लिखेंगे डेबिट साइड पे, राइट. आगे देखिए, अच्छे से रीडिंग कर लीजिएगा, हो जाएगा. इन्वेस्टमेंट 2 टाइप्स के होते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब मैं फॉरेन कंट्री में ऐसी एसेट परचेज करती हूँ जिसपे मेरा 100% ओनरशिप राइट है तो इसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं. और जब मैं फॉरेन करेंसी में ऐसा इन्वेस्टमेंट करती हूँ जिसपे मेरा 100% ओनरशिप राइट नहीं है, ठीक है, कंट्रोल नहीं है मेरा उस एसेट पे, तो इसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है. अच्छा, जो बोरोइंग है वो भी 2 तरीके की हो सकती है, मार्केट बोरोइंग एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस. एक्सटर्नल असिस्टेंस जो होता है ना वो मुझे डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाता है, मुझे कुछ कम रेट पे अगर फॉरेनर्स लोन दे देते हैं तो वो एक्सटर्नल असिस्टेंस का पार्ट होगा. नाउ अगेन दिस इज डिफरेंट. चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ये भी कैपिटल अकाउंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. ऑल ऑफ यू हैव गॉन थ्रू द टॉपिक कि हमने इसमें बैंकिंग वाले चैप्टर में पढ़ा था हमने बैंकिंग वाले चैप्टर में पढ़ा था, राइट. क्या पढ़ा था कि आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी, वो फॉरेन करेंसी को अपने पास मेंटेन करके रखती है, वही रिजर्व की यहाँ पे बात हो रही है,
इफ माय फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर चेंजिंग तो डेफिनेटली मेरी एसेट और लायबिलिटी को इन्फ्लुएंस हो रहा है। ये मेरी एसेट है ना, मेरी कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास जो फॉरेक्स रिजर्व है, दैट आर द एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट। अब ध्यान से समझना बेटा जी, इफ एनी टाइम आई एम हैविंग अ सरप्लस इन माय बीओपी, और मैं क्या करती हूँ, अपना एक्स्ट्रा मनी जो मेरे पास सरप्लस वाला है वो रिजर्व के अंदर ले जाके डिपॉजिट करवा देती हूँ। डिपॉजिट, तो मेरे पास से अभी ट्रांजैक्शन पर्पस से पैसा चला गया, मैंने अपनी गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवा दिया, तो इसको हम लिखेंगे डेबिट साइड पे। और अगर मैं कभी विड्रॉ करवाती हूँ तो फाइनेंस माय डेफिसिट ऑफ बीओपी, तो इसको लिखेंगे क्रेडिट साइड, क्योंकि ट्रांजैक्शन पर्पस से आई एम रिसीविंग फॉरेन करेंसी। ये खास बात है बेटा, आपको आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, आपको देखना है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे सिटीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हमने, या गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हमने एक्स्ट्रा पैसा डिपॉजिट करवा दिया है तो ये हमारे पास से आउटफ्लो है, डिपॉजिट करवा दिया, अभी अब मेरी पॉकेट में नहीं बचा है, तो इसको मैं लिखूंगी डेबिट साइड। और अगर मैं विड्रॉ करवा रही हूँ, मुझे डेफिसिट फेस कर रही हूँ मैं, अब मुझे जरूरत पड़ रही है एक्स्ट्रा पैसे की, तो मैं ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए अगर कुछ भी विड्रॉ करवाऊंगी, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, क्योंकि मेरे हाथ में तो पैसा आया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, चेंज इन फॉरेक्स रिजर्व वाला थोड़ा सा डिफरेंट है। अब कैपिटल अकाउंट में भी वापस सरप्लस भी आ सकता है, डेफिसिट भी आ सकता है। सरप्लस कब आएगा, व्हेन क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड। रिसिप्ट्स आर मोर देन पेमेंट्स, एंड डेफिसिट जब रिसिप्ट्स कम है, पेमेंट ज्यादा है। ठीक है, अब अगर कुछ कमी रह जाती है तो एरर्स एंड ओमिशन से उसको कवर करते हैं। ये पार्ट, ये टेबल बहुत खास है। हम अगर किसी को लोन दे रहे हैं, we will record it on the debit side of capital account। लोन दिया तो मेरे लिए एसेट क्रिएट हो गई कि मैंने किसी को लोन दे दिया, और फॉरेन करेंसी चली गई तो डेबिट साइड। अच्छा, हम बोरो कर रहे हैं, मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो इसको मैं लिखूंगी कैपिटल अकाउंट में। बट लायबिलिटी के साथ साथ अभी तो पैसा आ रहा है ना, आ रहा है तो कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड पे। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट है, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डेबिट साइड, बिकॉज फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो है। फॉरेनर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड, क्योंकि इनफ्लो है। अच्छा, रिजर्व में डिपॉजिट करवा दिया तो डेबिट साइड, क्योंकि अब मेरे पास अभी ये पैसा नहीं बचा। रिजर्व में से विड्रॉ करवाया तो क्रेडिट साइड। डेफिसिट ऑफ करंट अकाउंट कैन बी सेटल्ड बाय सरप्लस ऑन कैपिटल अकाउंट। कोई डेफिसिट आ गया ना करंट अकाउंट में, तो आप कैपिटल अकाउंट में सरप्लस विड्रॉ करवा के या लोन लेके या कैसे भी उसको कवर कर दोगे। या सरप्लस है करंट अकाउंट में, तो इस एक्स्ट्रा मनी को मैं एडजस्ट कर दूंगी कैपिटल अकाउंट से। नाउ द डिफरेंस इज गिवन। करंट अकाउंट, इट ब्रिंग्स अ चेंज इन ओनली कंट्रीज इनकम लेवल, लेकिन ये कंट्री के पूरे स्टॉक को, कैपिटल स्टॉक को इन्फ्लुएंस करता है। करंट अकाउंट फ्लो कंसेप्ट है, कैपिटल अकाउंट स्टॉक कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें सारे एट अ मोमेंट आपकी एसेट्स कितनी रहेगी उससे रिलेटेड चीजें रहेगी। कंपोनेंट्स आपको ऑलरेडी आते हैं, आगे देखिए। ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स, ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। ऑटोनॉमस आइटम्स देखिए, ये भी थोड़ा डिफरेंट है बेटा। वैसे तो सिलेबस हमें कह रहा है सीबीएसई का कि सिर्फ कंपोनेंट्स तक पढ़ना है, बट हम ये भी पढ़ेंगे। अभी कंप्लीट हो जाएगा, 5 मिनट का छोटा सा ही टॉपिक है। हैव अ लुक एवरीवन। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो पहले एग्जांपल के साथ समझते हैं। ऑटोनॉमस एक्टिविटीज, मैं एक्टिविटीज लेके समझा रही हूँ, वो सारे काम है जो हमने मस्ती मजाक में कर लिए, जो करते टाइम हमने कुछ भी नहीं सोचा। और अकोमोडेटिंग वो है जो ऑटोनॉमस करते करते हमसे अगर कुछ गलतियां हो गई तो हम उनको कवर करने के लिए जो काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं मजे मजे में इंजॉय कर रही थी, घर में इधर उधर भाग रही थी, दौड़ रही थी, और मुझसे क्या हुआ, मुझसे घर का कोई आइटम खराब हो गया, या फिर दीवार पे, अभी अभी घर पे पेंट हुआ है और दीवार पे मैंने कुछ गलती से गिरा दिया है। अब ये ऑटोनॉमस है। अब मुझे पता चल गया, मम्मी देखेगी तो डांट पड़ जाएगी, मैंने क्या किया, फटाफट फटाफट उसको क्लीन किया। ये अकोमोडेटिंग है। यानी जो गलती आपसे मस्ती मजाक में हो गई वो क्या है, ऑटोनॉमस, और जो आपने करेक्शन के लिए किया वो क्या है, अकोमोडेटिंग। जैसे अभी 1.5 साल हमने बहुत इंजॉय किया कोविड-19 में, ऑटोनॉमस, मस्ती को ध्यान में रखते हुए। लेकिन अब हम बहुत सीरियस हो गए हैं और अब हम क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं ताकि हमारा रिजल्ट बढ़िया आ जाए, अकोमोडेटिंग। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे चैप्टर से रिलेट करके।
इकोनॉमी में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हुए फॉर द प्रॉफिट मोटिव, उनको कहेंगे हम ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन। मैंने एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया, इन्वेस्टमेंट किया, बोरोइंग की, ऐसे बहुत सारे काम किए अपने प्रॉफिट के लिए, तो ये सारे ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन है। लेकिन इस प्रॉफिट और लॉस की वजह से मेरे बैलेंस ऑफ पेमेंट में या तो सरप्लस आ गया या डेफिसिट आ गया। अब मैं सरप्लस या डेफिसिट को बैलेंस करने की जब कोशिश करूंगी तो ये मेरा अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन होगा। जब इसको बैलेंस करने की कोशिश करूंगी, हैव अ लुक बुक में क्या लिखा हुआ है। ऑटोनॉमस items refers to those international economic transactions which take place due to some economic motive such as profit maximization। कोई भी economic motive हो सकता है आपका, right? लेकिन अकोमोडेटिंग ऐसे नहीं है। अच्छा, इसको अबव द लाइन आइटम भी कहते हैं क्योंकि ये अकाउंट क्लोज होने से पहले पहले होंगे। कैपिटल नेचर के भी हो सकते हैं और करंट अकाउंट में आने वाले भी हो सकते हैं। अकोमोडेटिंग आइटम्स कौन से? The transactions that undertake to cover the gap of balance of payment, such transactions are undertaken to cover deficit or surplus in autonomous transaction। अब आपने जब ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन किए तो कुछ भी डेफिसिट या सरप्लस आया, उसको कवर करने के लिए आप जो जो काम करोगे वो सब आएगा आपके अकोमोडेटिंग में। इनको बिलो द लाइन आइटम्स कहते हैं। बिकॉज व्हेन आई वाज क्लोजिंग माय बीओपी अकाउंट तब मुझे पता चला कि यार यहाँ तो गड़बड़ हो गई है, यहाँ तो या तो सरप्लस आ गया है या डेफिसिट। अब आप सोचेंगे सरप्लस तो बेनिफिशियल है, उसको क्यों सही करना है? उसको सही करना है क्योंकि अकाउंटिंग सेंस में बीओपी को बैलेंस रखना है। तो जो एक्स्ट्रा फॉरेन करेंसी आपने अर्न की है ना, यू विल प्लान टू इन्वेस्ट सच करेंसी, ठीक है, हम उसका इन्वेस्टमेंट सोचेंगे तो अकोमोडेट कर देंगे हम उसको। अब इसकी सोर्सेस क्या है? या तो फॉरेक्स रिजर्व या बोरोइंग फ्रॉम आईएमएफ और इंटरनेशनल मॉनेटरी अथॉरिटीज। हम जनरली हमसे गलतियां होती है और उसको अकोमोडेट करने के लिए हमें बोरोइंग्स करनी पड़ जाती है। अब देखिए डिफरेंस दिया हुआ है। ऑटोनॉमस आइटम्स कौन से हैं? जो प्रॉफिट मोटिव से हुए। अकोमोडेटिंग कौन से हैं? जो सरप्लस और डेफिसिट को कवर करने के लिए। बीओपी पे इफेक्ट ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट है। इसने ध्यान ही नहीं दिया बीओपी पे क्या इफेक्ट होगा, इसने कहा छोड़ो बीओपी को मारो गोली। लेकिन अकोमोडेटिंग कह रहा है भाई ऑटोनॉमस ने जो इग्नोर कर दिया अब हम उसको सही कर देते हैं, है ना। काफी बार हम गलती करते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमारे बिहाफ पे सॉरी फील करते हैं, वो अकोमोडेटिंग। फिर करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑटोनॉमस में दोनों आएंगे, करंट नेचर के भी और कैपिटल नेचर के भी। अकोमोडेटिंग सब कैपिटल नेचर के होंगे। अल्टरनेटिव नेम्स above the line and below the line। Now BOP is always balanced in accounting sense। अकाउंटिंग सेंस में क्रेडिट आइटम्स विल बी इक्वल टू डेबिट आइटम्स, लेकिन इकोनॉमिक सेंस में ऑटोनॉमस से जो भी रिजल्ट आएगा वो सरप्लस या डेफिसिट शो करेगा। फिर हम उसको अकोमोडेटिंग से क्या करेंगे? सही कर देंगे, कवर अप कर देंगे। नाउ डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी और डेफिसिट ऑन बीओपी, ये क्या है? जब टोटल इनफ्लो टोटल आउटफ्लो से कम रहते हैं तो इसको डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं। बस चैप्टर कंप्लीट है। यू कैन सी वेयर इज द रिवीजन की फॉर योर chapter। It means in a single class we have covered the 12th chapter of your book। This is quite simple and this and the last chapter is having an important weightage in your examination। तो आप बहुत बढ़िया से इसको प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है, अच्छे से इसको रेडी करिए, सारी चीजें इसकी लर्न कर लीजिए। मैं आपको बता देती हूँ जो आपके सैंपल पेपर्स है ना, सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है दैट इज कवरिंग 8 मार्क्स क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन है टोटल उसमें इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से सारी प्रिपरेशन करनी। 8 क्वेश्चंस अगर इन 2 चैप्टर्स में से आ रहे हैं तो हम 8 तो आराम से ला सकते हैं क्योंकि कुछ कंफ्यूजन नहीं है। ओके एवरीवन, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट एंजॉय योरसेल्फ एंड मेक श्योर नाउ यू हैव टू बी अ लिटिल बिट मोर सीरियस फॉर योर एग्जाम्स, राइट? ओके, हैव अ नाइस डे।